Good morning, students. This is your EVS class, and we were doing chapter number 17, the earth and sky. So, children, we have finished this chapter and we are on the exercise part, the exercise number D and E we will be doing in this session. So, I will take the first exercise, the exercise number D first, that is short answer questions. We will be discussing the short answer questions. So in the first question, it is given that what is the order of the solar system? What is the order of the planets in the solar system? So the answer is the order of planets in the solar system is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So it is given in your book also. We have also discussed in the earlier sessions and earlier videos also. So you can write like this: Mercury, Venus, Earth, Mars in one column, then Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune in the second column. Now, the second question is, how does sun help us? Okay, so we have studied about the different uses of sun. So the sun helps us in many ways. Like the sun gives us sunlight. Sunlight helps planets to produce food. Here it is written planets, you can also write plants, because where uh, where does the plant grow? Plant grow on the earth or on the planet. So plants can grow on the planet, not on every planet. Where there is life, only there the plant will grow. So life is only existing in the earth. So plants will be growing on earth. So sunlight is helping the plants to grow food. No, so sunlight helps the planets to produce food. So planets or plants, both you can write. Second, it heats water and turn it into water vapors. On cooling, this water vapor forms cloud which bring rain. So children, this is the water cycle. We have also discussed or studied about water cycle in the previous chapter number 9, that is a water, a wonderful liquid. So it heats water and turn it into water vapors. So who heats it? Sun. Due to the light of the sun, water get heated. It rises up in the form of water vapors, goes up to the sky, cools down there. Cooling process is called condensation. It forms cloud, and then again it, when it becomes heavy, it brings falls down as rain, and that process is called precipitation. That process, precipitation, was not given in your book at your standard class 3, but it is the process of precipitation when water from the cloud falls on the ground again. That is called precipitation. Now third is, it gives us natural light and heat. So sun gives us natural light and heat. So these are the three uses of sun which we have on the planet earth. Now next question is, what is atmosphere? Okay, what is atmosphere? So I have written the answer. The earth is surrounded by a layer of gases present in air. These layer of gases is called the atmosphere of the earth. So earth is covered all around the earth. A layer of gases is there. So earth is covered with a layer of gases. So what is layer of gases? There are different types of gases present in the air. Okay? So those have formed a layer. Layer means there is a gas which is a little bit heavy, will be downwards,
तो जो उससे जो हल्की होगी वो उसके ऊपर होगी, जो उससे भी हल्की होगी वो उसके ऊपर होगी। ठीक है, तो सबका अपने अपने वेट के हिसाब से अपनी अपनी एक लेयर फॉर्म होती चली जाती है। तो उसी तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मीन्स अर्थ के सराउंडिंग्स में चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है, कई सारी लेयर्स हैं गैसेस की। ठीक है, तो उस लेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, and there is ozone layer also. There are some uh, noble gases also: argon, krypton, neon, xenon. So these are all the gases found in the atmosphere. There is other gases like sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide. So there are different types of gases which are produced from the earth due to humans activities. सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैसेस। तो उन्होंने अपनी एक लेयर बना रखी है अर्थ के चारों तरफ, तो उस पूरी लेयर ऑफ गैसेस को बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो उस एटमॉस्फेयर को हम लोग कई लेयर्स में डिवाइड करते हैं, तो वो आप आगे की फर्दर क्लासेस में यू विल स्टडी व्हाट दोज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ionosphere, exosphere. So there are, these are the names of the layers of gases. So we come to the, this ends the exercise number D, short answers. We will move to exercise number E, that is long answers. So first question is, what is a satellite and how does a satellite different from a star? Now the answer is, a body in space that moves around a planet is called a satellite. I have already discussed with you that what is a satellite. Satellite जो होती है बच्चों, वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, तभी उसको हम सैटेलाइट कह सकते हैं। कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि एक सन है, ठीक है, तो सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, तो सारे प्लैनेट्स सन के क्या हो गए? सैटेलाइट्स हो गए। उसी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं उनके भी चारों तरफ एक छोटे छोटे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट या प्लैनेट्स जो चक्कर लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? मून, तो मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। ठीक है, नाउ ऑन द अदर हैंड व्हाट इज स्टार? स्टार इज़ अ ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है, और वो कभी किसी के चक्कर नहीं लगाता, वो स्टेशनरी है, स्टैगनेंट है, वो एक जगह अपनी जगह पे हमेशा रहता है, और वो उसके चारों तरफ कोई ना कोई हेवनली बॉडी या ऑब्जेक्ट या प्लैनेट रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। सो स्टार is a luminous body. Luminous means the body which can emit light or can give light of its own, मतलब कि वो अपनी खुद की लाइट दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, फॉर एग्जांपल टॉर्च है, कैंडल है, ठीक है, सन है, ठीक है, और सम इंसेक्ट्स आर ऑल्सो देयर जिनको हम हिंदी में जुगनू बोलते हैं, वो भी अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, रात में टिम करते हुए वो जलते रहते हैं, तो दोज आर ऑल्सो ल्यूमिनस बॉडीज़। सो अ सैटेलाइट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। सैटेलाइट के पास खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मून हमें रात में चमकते हुए तो दिखता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, इस वजह से वो हमें दिखता है। इसलिए सैटेलाइट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, और सैटेलाइट जो है वो किसी न किसी बॉडी के चक्कर लगाती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड अ सैटेलाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज़ अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट? ठीक है, तो इसका आंसर है, द अर्थ इज़ अ स्पेशल प्लैनेट बिकॉज द अर्थ इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दैट इज़ वाई इट इज़ नाइदर टू हॉट nor too cold, and as a result it is the only planet where life exists. तो हम लोग अर्थ को स्पेशल प्लैनेट क्यों बोलते हैं?
हम लोग अर्थ को स्पेशल प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी अदर प्लैनेट्स पे तो लाइफ है नहीं, तो इसलिए हम उसे स्पेशल बोलते हैं। और वहाँ पे अर्थ पे लाइफ क्यों है, क्योंकि अर्थ की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही जगह पर है सन से वो एकदम इतनी दूरी पे है कि ना तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो सकती है ना ज़्यादा ठंड हो सकती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे लाइफ एवोल्यूट हो गई, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करने लगी। सो दिस इज़ द आंसर नंबर 2। We come to question number 3, that is, why does the moon shine? Why does the moon seem to change its shape? Acha, why does the moon shine? We have discussed. The moon has no light of its own. It shines because it reflects the light of the sun. मून क्यों शाइन करता है? क्योंकि हम लोग मून शाइन करता है तो हम लोग कहाँ से देख सकते हैं उसको? मून, हम लोग तो अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे जब रात होती है, मीन्स नाइट, एट द नाइट टाइम हम देखते हैं हमें मून दिखाई देने लगता है। तो मून हमें इसलिए दिखाई देने लगता है क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी है, नाइट टाइम है, और सूरज की रोशनी तो मून पे वैसे भी पहले भी पड़ रही थी, लेकिन अर्थ पे नहीं पड़ रही है क्योंकि तभी तो नाइट हो गई अर्थ पे। तो मून पे पड़ रही है और अर्थ पे नहीं पड़ रही, तो हमें अंधेरे में कोई ऐसी चीज़ जिस पर रोशनी पड़ रही है वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, और आपके हाथ में एक टॉर्च है और सामने की दीवार पे एक फ़ोटो फ्रेम है, ठीक है, एक फ़ोटो है जो सामने की दीवार पे टंगी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस फ़ोटो में एक फ्लावर पॉट बना हुआ है, ठीक है, और आपके हाथ में एक टॉर्च है और आपने कमरे की लाइट बंद कर दी है, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। उसके बाद आपने टॉर्च जलाई और उस फ़ोटो फ्रेम पे आपने लाइट थ्रो की, ठीक है, उस फ़ोटो फ्रेम पे आपने लाइट टॉर्च जला दी, तो आपको कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? वो फ़ोटो फ्रेम दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यही चीज़, यही फिनोमेना, ठीक है, होता है इन द केस ऑफ मून एंड व्हेन यू सी इट फ्रॉम द अर्थ। आप अर्थ पे हो, यानी आप कमरे में हो, जैसे पूरा अंधेरा है, तो वैसे अर्थ पे हो, वहाँ पे लाइट नहीं है, और लेकिन सन की लाइट जो है वो मून पे पड़ रही है, तो आपको अर्थ से जो मून दिखाई दे रहा है वो चमक रहा है क्योंकि उस पर तो लाइट पड़ रही है, और लाइट मून पे हमेशा पड़ती रहती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से वही लेता हूँ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप कमरे में बैठे हो, डार्क रूम है और आपके हाथ में एक टॉर्च है और आपने फ़ोटो फ्रेम पे लाइट मारी और वो सिर्फ फ़ोटो फ्रेम आपको दिखाई देने लगेगा। तभी आपने अपने कमरे की लाइट ऑन कर दी, ट्यूब लाइट ऑन कर दी, ठीक है, और आपकी टॉर्च भी ऑन है और उसी फ़ोटो फ्रेम पे आप थ्रो कर रहे हो लाइट, उसी फ़ोटो फ्रेम पे आपने टॉर्च को लगा रखा है। लेकिन अब आपने कमरे की ट्यूबलाइट ऑन कर दी, तो क्या आपको वो दिखाई देगी वो रोशनी उस तरीके से? नहीं, आपको सब कुछ पूरे कमरे में सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो उसी तरीके से एट द डे टाइम ऑन अर्थ पे दिन के समय जब पूरी सूरज की रोशनी आ जाती है तो हमें जो मून होता है वो नहीं दिखता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है कि वो हमें नहीं दिख पाता है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस, इतनी दूरी ज़्यादा है हमारे अर्थ से कि हम उसे अपनी आइज़ से, अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो हमें वो सिर्फ कब दिखता है? रात के समय दिखता है, चमकते हुए, क्योंकि हम रात के समय कोई चमकती हुई चीज़ दूर तक देख सकते हैं लेकिन दिन में नहीं देख पाते। तो दिस यू कैन से द मून इज़ रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ द सन। तो ये प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, इफ़ नहीं तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। देन वाई डज मून सीम टू चेंज इट शेप? अब मून चेंज क्यों करता रहता है शेप? तो बच्चों, मून शेप नहीं चेंज करता है। मून जो होता है वो पूरी एक इट्स अ राउंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, गोल ऑब्जेक्ट है। तो मून पे
जब सूरज की रोशनी पड़ती तब वो चमकता है। तो जायज़ सी बात है, अगर मून, पूरे मून पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो पूरा मून चमकेगा, आधे मून पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो आधा ही मून चमकेगा, और आधे से कम मून पे रोशनी पड़ेगी तो आधे से कम चमकेगा, और आधे से ज़्यादा पे पड़ेगी तो आधे से ज़्यादा चमकेगा। तो आधा मून पे अगर रोशनी पड़ेगी तो उसको बोलते हैं हाफ मून, आधे से ज़्यादा मून पे पड़ेगी रोशनी तो उसे बोलते हैं गिबस मून, और आधे से कम मून पे पड़ेगी रोशनी सूरज की तो उसे बोलते हैं क्रिसेंट मून। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। आधे से कम मून पे जब रोशनी पड़ेगी तो उसे बोलते हैं क्रिसेंट, क्रिसेंट CRESCENT, क्रिसेंट मून। तो इसी तरीके से वो अपने शेप्स चेंज करता रहता है आफ्टर एवरी 14 और 15 डेज़। एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 30 डेज़ होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 30 डेज़ होते हैं। तो उसमें से हाफ मंथ यानी 15 डेज़ जो होते हैं वो मून जो है वो फुल मून से बिल्कुल डार्क मून तक चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं अमावस्या। फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, जब पूरे मून पे रोशनी पड़ती है उसको बोलते हैं पूर्णिमा, और जब बिल्कुल रोशनी नहीं पड़ती मून पे उसको बोलते हैं अमावस्या। तो वो मंथ की स्टार्टिंग से वो 15 डेज़ तक ये अपना शेप चेंज करता रहता है। उसके बाद 15 डेज़ के अगले 15 डेज़ तक वो फिर से अमावस्या से, पहले वो फुल मून था, उसके बाद वो अमावस्या तक आया, फिर अमावस्या से फिर फुल मून हो जाएगा धीरे धीरे, फिर फुल मून से फिर अमावस्या हो जाएगा 15 डेज़ में, फिर 15 डेज़ में अमावस्या से फिर फुल मून हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। एवरी 14 और 15 डेज़ पे ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है एवरी मंथ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द moon change its shape. So thank you children. If you want to ask something you can ask in the WhatsApp group.